learners, welcome to your favorite e-learning platform Pathshala. So today I am here with the chapter number 4th of chemistry standard 9th, and the name of the chapter is structure of the atom. So in this case, structure of the atom, we have done the basics. Along with that, we have gone through the entire things which are very important to know the structure of atom elaborately. But now in this chapter, we'll proceeding with the structure part and what are the contributions for the scientists and other workers who are able to make the structure of the atom is successful. So let's proceed further along with the introductory part. So in introduction, the structure of atom, if we can say, atom and molecules are building block of matter. We guys are very well aware about कि atom है क्या. अगर introductory part की बात करी जाए तो we are proceeding with the chapter structure of atom, और हमें पता है atoms and molecules because atom ही मिलके molecule बना रहे हैं. तो basic building block of any matter is what? That is atom. So this is the main important criteria of our in this chapter कि we are going to study कि atom exactly है क्या, how it is formed, how it is going to be work, कैसे कैसे ये proceed हुआ, कैसे कैसे हम इसका internal structures पे हम ज़्यादा focus करने वाले हैं, how we are getting the structure of atom. So next is we can say here atom is made up of subatomic particle. Before this we have done in third chapter Dalton's atomic theory we have done. उसमें क्या था? That is along with the Dalton atomic theory क्या बताती है हमें? Dalton atomic theory is telling us कि atom is the smallest particle which may or may not have independent existence. It can be, it can't. Fine. In free state some atom are, I have already told you जैसे chlorine है not existing in free state, it is in molecular form Cl2 की form में मिलेगा. But carbon we can get in free state. तो independently exist कर रहा है कार्बन का एटम, बट क्लोरीन का नहीं कर रहा. Another point था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स जो है अपने पास वो सेम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर किसी चीज को जब बना रहे हैं एलिमेंट के तो वेरी करेंगे डिफरेंट एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच करेंगे. अगर दूसरे एलिमेंट की बात हो रही है देन प्रॉपर्टी विल बी मैचिंग विद दैट. और बाकी जो अपने 2 लॉज करे थे इन केस ऑफ third chapter, law of chemical composition, law of conservation of mass and law of definite proportion, that are also we are getting the idea of those laws from Dalton's atomic theory. तो यही बताया था डाल्टन ने कि जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस कर रहे हैं एटम्स के साथ तो मास जो है दैट विल बी कंजर्व्ड. वो क्या रहेगा? डेफिनेट रहे, उतना ही रहेगा. रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. एंड इन केस ऑफ अनदर लॉ जो हमारे वाला नेक्स्ट था 6 पॉइंट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का था, दैट इज कि जो हमारे पास कभी भी कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो द पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी इन डेफिनेट रेशो. उनका रेशो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. तो दैट ऑल वी हैव डन. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है. बट हियर दैट थ्योरी is going to be proven wrong. Why? Because अभी हम समझने वाले हैं, already we have discussed this, एक हमने इसका ओवरव्यू कर लिया है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. बट नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था कि एटम जो है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा कोई नहीं है, वो इंडिविजिबल नहीं है. एटम इज नॉट इंडिविजिबल. बट नाउ वी आर कमिंग टू नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब एटम से छोटे भी क्या हैं? पार्ट्स हैं हमारे पास. तो व्हाट आर दोज? दैट आर प्रोटॉन, electron and neutron. Proton, neutron and electron. Already I have given you brief little bit kind of idea of these, but in detail now we are going to know how protein are going to be invented, how neutron are come to the existence, electron को कैसे existence में लाया गया, कौन कौन से हमारे scientist थे जिन्होंने इस पे काम करा. तो we need to proceed along with that part, but before that we need to see once the structure of atom. तो यू कैन सी इन दिस इमेज क्या देख रहे हैं हम? सेंटर में एक न्यूक्लियस दिख रहा है. आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग दिस इमेज. ये आपको एक ग्राफिक्स में दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस इज दिस एंड आई नो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस कि न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. एंड आउटसाइड दैट न्यूक्लियस वी आर हैविंग ऑर्बिट्स जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं बिकॉज है सर्कुलर है, बट किस प्लेन में है? प्लेन्स आर वेरी, ठीक है, वहां पे ऐसे ही है. तो सिंप्लिसिटी में बताया जा रहा है, बट इट इज अलोंग द डिफरेंट प्लेन्स. तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, देखो सेंटर में न्यूक्लियस इज नॉट मूविंग, इट इज इन सेंटर ओनली. ठीक है, तो ये जो हमारे सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या घूमते दिख रहे हैं आपको? इलेक्ट्रॉन. दीज आर द
इलेक्ट्रॉन। आई हैव टोल्ड यू कि कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल कोई भी भर सकता है अपने में, मिनिमम 2, जो फर्स्ट वाला शेल है अपना विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, एंड आफ्टरवर्ड 8 विल बी देयर। फाइन। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे भी क्यों है ये रूल, ऐसा क्यों है, दैट विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। ये बाद में हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, बट थोड़ा सा हमने इसको देखना है पहले। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, दे आर द गिविंग अस द मास, वी हैव डन ऑलरेडी। मास कहां से आता है, मास ऑफ एटम इज इन इट्स न्यूक्लियस। कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रॉन्स। तो पहले हमें नहीं पता था, क्या बोला गया, डाल्टन्स ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या है, इंडिविजिबल है, बट नाउ वी आर गेटिंग विद देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अब ये मास क्यों दे रहे हैं, सेंटर में क्यों है, इलेक्ट्रॉन साइड पे क्यों है, लिटिल बिट आइडिया आई हैव गिवन यू गाइस, बट नाउ हम इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के साथ हम इस पे वर्क करेंगे कि व्हाई दिस इज हियर, विच वन इज द साइंटिस्ट जिसने ये प्रूव करा कि ये ऐसे ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इनको यहाँ रखने का लॉजिक क्या है। इलेक्ट्रॉन्स आर वाई रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, Why? Because they are lighter in weight. Fine. वो कितना वेट है, कितना मास है, कैसे कैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है, कितना चार्ज है, that we all going to study in this chapter. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज लाइक दिस। ये अभी जो हमें पता है ऐसा स्ट्रक्चर है ये, बट इससे पहले जब बिगिनिंग हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे काम करना, तो क्या क्या एविडेंसेस आए, किस अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या प्रूव करा, किसी ने इसका क्या रखा, की स्टोन रखा, उस स्टोन के ऊपर क्या हुआ, एक पहले नींव रखी गई ना, नींव रखी गई कि कुछ आइडिया आया, उसने ये चीज बताया, उसके बाद नेक्स्ट ने उसको क्या करा, उसको और वेरीफाई करा, देन वी आर रीचिंग दिस स्ट्रक्चर पे पहुंचने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स प्रोसीड करें, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर।